Assalamu alaikum students, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Take out your the grammatry book and place in front of you. Come at page number 74. This is our first lesson of term 2, sentence kinds based on function. There are 5 types of sentences on the basis of function: declarative, interrogative, imperative, exclamatory and optative. So number 1 is declarative. Declarative is that type of sentence in which we get information to make a statement. For example, I've forgotten the password to my email account. So it's mean इधर हम यहाँ पर एक information deliver कर रहे हैं जो कि एक statement बन रही है, ठीक है। declarative में जहाँ पर आप कुछ declare कर रहे होते हो, कुछ आप statement दे रहे हो और जिसमें आप information कुछ provide कर रहे हो listener के लिए. Number 2 is interrogative, to ask a question that seeks information or an answer. So in interrogative we ask questions that seeks information or an answer. Interrogative means where we ask questions to someone and most probably they will start WH words. So imperative is to tell someone to do or not to do something. Imperative में जहाँ आप किसी को कोई कमांड दे रहे होते हो कि आपने काम करना है और या फिर नहीं करना है. For example, leave the door open के leave the door open, यहाँ आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो कि काम आपने करना है. Now come to exclamatory, in which to express the intensity of one's feelings or thoughts. जहाँ पर आप एक्सक्लेम कर रहे होते हो फीलिंग्स, इमोशंस को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हो न्यू वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द स्काई लुक्स दिस मॉर्निंग. एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, के जो भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो यहाँ आपको एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होगा. सो इट इज़ नेसेसरी. इफ़ यू कांट पुट इट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस यू विल गेट 0 marks. So make sure when you write the sentence, so use their punctuation on the basis of function. For example, when we write exclamatory sentence, we will put exclamation mark at the end of our sentence. Next kind of sentence is optative, in which we express a wish or prayer to someone. जहाँ पर आप किसी को कोई विश या प्रे दे रहे होते हो एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टार्ट होगा मे से. मे वी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आवर मिशन. एट द एंड यू पुट फुल स्टॉप ऑफ योर सेंटेंस. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर यू. डेक्लेरेटिव वो सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स जहाँ आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हो स्टेटमेंट की फॉर्म में, स्टेटमेंट बन रहा होता है और उसके एंड में हम लगाते हैं फुल स्टॉप. Interrogative where we ask questions and at the end we put question mark. Imperative where we give instructions or orders, so at the end we put full stop. Exclamatory are those type of sentences where we express our feelings and emotions or thoughts and at the end we put exclamation mark of our sentence. Optative जहाँ पर आप अपने wish या prayers किसी को दे रहे होते हो and most probably ये start होते हैं may से and at the end we put full stop or exclamation mark. So now come to exercise A. You will do this exercise in your book. So the caption is, on the basis of the description of the 5 types of sentences above, decide what kind of sentence each one is. जो भी हमने 5 kinds of sentences पढ़ी हैं उसी से related कुछ sentences हमारे पास given है. Now we have to decide which type of sentence it is. What a terrible accident. So as I told you कि जिसके end में आपके पास exclamation mark है, that's called exclamatory sentence. So this sentence is called exclamatory. So write over here. Number 2 is don't go out now. यानी कि यहाँ इट साउंड्स कि यहाँ हम इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि काम आपने करना है या नहीं करना, यही इसकी डेफिनेशन थी. सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इम्पेरेटिव. राइट हियर, कैन आई नॉट टेक माई डॉग अलॉन्ग ऑन द कैंपिंग ट्रिप. यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम
ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कैन. सो इट्स मीन एट द एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क भी है. सो इट इज़ डेफिनेटली इंटरोगेटिव सेंटेंस. मे डेमोक्रेसी विन, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी को विश या प्रे कर रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली वी यूज़ मे. और यहाँ पर एंड में क्या है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन. सो वी यूज़ हियर ऑप्टेटिव. ठीक है, सो इट इज़ अ ऑप्टेटिव सेंटेंस. आई एम नॉट गोइंग टू डू योर होमवर्क फॉर यू. दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन दैट गिव्स इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट बना रहे, डिक्लेयर किया जा रहा है. So this is called declaratives. How sweet of her to come all the way to visit me. Again exclamation mark है and ये यूज़ स्टार्ट हो रहा है H से, जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, so this is called interrogative. Again exclamatory है हमारे पास. How sweet of her to come all the way to visit me. Exclamatory sentence. Next one is how do I dial a UK number from my mobile phone. Here we ask question that seeks information for an answer, so it's a interrogative. I wish I could go on a vacation right now. Optative, यहाँ wish की जा रही है. The newspaper says it might rain today in the afternoon. Again declarative sentence है जहाँ पर आप information दे रहे हो. Stop wasting your time like this, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. So this is called imperative sentence. Now come at page number 75. Affirmation and negation. Declarative, interrogative and imperative sentences can be affirmative, positive or negative. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. इट्स मीन कि अभी जो हमने काइंड्स पढ़ी हैं जिसमें डेक्लेरेटिव था, इंटरोगेटिव और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकते हैं. सो फर्स्ट वी लुक एफर्मेटिव डेक्लेरेटिव, यानी कि एफर्मेटिव हम देख रहे हैं. डेक्लेरेटिव का ही हम क्या देख रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस. इट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. द फ्लाइट इज़ डिलेड. ठीक है, जहाँ एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. इन नेगेटिव डेक्लेरेटिव जहाँ आप नो, नॉट, नन, यहाँ पर आप मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो. सो यहाँ पर इसको आप नेगेटिव डेक्लेरेटिव कह रहे हो. द फ्लाइट इज़ नॉट ऑन टाइम, यानी कि आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो. इट्स अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर कर रहे हो कुछ. सो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. नाउ इंटरोगेटिव. एफर्मेटिव इंटरोगेटिव इज हैव यू बुक्ड योर टिकट्स. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और किसका है ये, एफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिवली किसी चीज़ को पूछा जा रहा है, किसी चीज़ का क्वेश्चन किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है. नाउ नेगेटिव इंटरोगेटिव, जहाँ पर आप नेगेटिवली इंटरोगेशन कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो. हैवंट यू बुक्ड योर टिकट्स, जहाँ पर आप नॉट यूज़ कर रहे हो. एफर्मेटिव है इम्पैरेटिव में, यानी कि इम्पैरेटिव सेंटेंस है इन द फॉर्म ऑफ इम्पैरेटिव एफर्मेटिव. प्लीज़ पुट योर शूज़ ऑन. देन इम्पैरेटिव का ही सेंटेंस है किस में, नेगेटिव में, नो के मीनिंग में. डोंट गो अराउंड बैरफुट. ओके, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. We can divided interrogative sentences in the following types. First one is yes no questions. These expect the listeners to answer with a yes or no. It's mean कि जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, जहाँ पर जो आपका लिसनर है वो आंसर देगा आपको yes या फिर no में. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू लॉक द डोर व्हेन यू लेफ्ट. सो अब यहाँ पर या तो yes आंसर होगा या फिर no आंसर होगा. Next one is yes or no questions with modal auxiliaries depending upon the situation. Questions may begin with modal auxiliaries to seek permission or advice, to request for information or to question the necessity of something. ऊपर जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट हो रहा था आपके पास did से. did is a helping verb, ठीक है, जो कि past tense में हम यूज़ करते हैं did. अब ये जो आपके पास जो सेकंड बुलेट में लिखा हुआ है, इधर हम यूज़ करें मॉडल ऑक्सिलरीज और इधर भी हम क्या आंसर अपना रिक्वायर कर रहे हैं, येस या फिर नो. बट इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि क्वेश्चंस जो आपको किससे बिगिन हो रहे, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है, कि आपको परमिशन ली जा रही है या एडवाइस की बात हो रही है, कि रिक्वेस्ट मांगी जा रही है या फिर इन्फॉर्मेशन ली जा रही है या फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. इट डिपेंड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मे आई लीव नाउ.
So it's a may. It's begin from may and this is a modal auxiliary verb. So it's been here we seek permission. इधर हम permission grant कर रहे हैं, permission पूछ रहे हैं. Say may I leave or no now? So it may be answer yes or no. Should she go to the doctor? यहाँ आप advice ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इधर हम यूज़ कर रहे हैं should. This is again modal auxiliary. नेक्स्ट वन इज़ could you tell me the way to the post office? now इधर हम इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली आप इतना बता सकते हो. सो हियर वी यूज़ could एंड अगेन आंसर येस और नो. मस्ट आई डू दी होमवर्क राइट नाउ. इधर आप नेसेसिटी की बेस पर क्वेश्चनिंग कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट वन इज WH क्वेश्चंस. दीज एक्सपेक्ट द लिसनर टू आंसर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. अब जो WH के जो वर्ड्स हैं और जहाँ से आपका कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स मीन कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो लिसनर है जिससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपको आंसर जो प्रोवाइड करेगा किस में करेगा, या तो डिटेल में देगा या स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ के बारे में आप मांग रहे हो उसी के बारे में आपको स्पेसिफाई कर देगा. एग्जाम्पल है व्हिच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कराची कैंट स्टेशन. ठीक है, अब मे बी आपका आंसर यहाँ डिटेल्स में भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ लिसनर. नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस. दीज रिक्वायर द लिसनर टू कन्वे हिज और हर चॉइस ऑफ ऑप्शन व्हेन आंसरिंग. जहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछो, जहाँ पर आपका जो लिसनर है आप उसको कन्वे कर रहे हो हिज और हर उसकी चॉइस का ऑप्शन जब वो आंसर करेगा. ठीक है, यानी कि वहाँ पर यहाँ पर आपका जो लिसनर है वो अपनी मर्ज़ी से आंसर देगा. डू यू वांट अ बाईसाइकिल ऑन योर बर्थडे और नाइट विजन बाइनाकुलर्स. सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर भी आपका गेन क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, इंटरोगेशन कर रहे हो, बट इधर आपका जो लिसनर होगा वो अपनी चॉइस से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेगा. ठीक है. नाउ टर्न एट पेज नंबर 76. Question tags. These are very short questions, only verb plus subject added at the end of the declarative sentences. A comma separates the statement from the question tag. A speaker uses question tags when he or she wants the listener to confirm or contradict his or her statement. स्टूडेंट्स, एक हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आती है, इंटरोगेशन की जो फॉर्म है, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स, जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप वर्ब और सब्जेक्ट को मिलाकर लिख देते हो. ठीक है, आप ये यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पर ऐड करते हो आप इसे? डेक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में. बट इधर हम कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कॉमा जो होता है वो आपके स्टेटमेंट को और आपके क्वेश्चन टैग को सेपरेट कर देता है. जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, शी इज़ लिविंग द जॉब. दिस इज़ द डेक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, बट एट द एंड वी यूज़ क्वेश्चन टैग. दिस इज़ कॉल्ड इज़न्ट शी एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क. सो अब यहाँ आपके पास इज़ क्या है? आपके पास एक वर्ब है. अब इधर हमने एंटी लगाया, यानी कि नॉट. इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, जो कि नॉट की शॉर्ट फॉर्म है. और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था, जब हम बात कर रहे थे, ये कौन सी स्टेटमेंट थी? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी. जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी सो वी यूज़ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. और जब हमारे पास नेगेटिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड टू जो है आपके पास, यू आर इंट गोइंग टू फॉरगिव हिम. दिस इज़ दी अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट. आर इंट लिखा हुआ है, यानी कि आर के साथ नॉट लगा हुआ है इन अ कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म. यानी कि आर है आपके पास सब्जेक्ट वर्ब और इसके साथ हमने नॉट यूज़ किया हुआ है. सो जब आप इधर क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जहाँ आपने अपनी वर्ब यूज़ की है और अपना सब्जेक्ट यूज़ किया है. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि जब आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो उसमें आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करोगे, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है सो वी यूज़ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. सो दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन टैग, जहाँ आप वर्ब और सब्जेक्ट को कंबाइन करके लिख रहे होते हो इफ़ यू हैव नेगेटिव स्टेटमेंट. बट अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप अपने साथ वर्ब की साथ नॉट लगा देते हो इन अ कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म, एंड उसके साथ आप सब्जेक्ट को अपने ऐड कर देते हो. एक्सरसाइज बी जो है आप अपनी बुक में ही करोगे अगेन, जहाँ आप सुइटेबल क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करोगे. वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. एंड स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है यू डोंट हैव माई बुक. दिस इज़ दी नेगेटिव
स्टेटमेंट, ठीक है। डेक्लेरेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इधर आप क्या यूज़ करोगे क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव। अब जो आपके पास डोंट है, आपको डू नॉट जो लिखा आप डू को ही यूज़ कर लोगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, डू यू। क्लियर है। नंबर 2 इज़ ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब। अब इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट है, ये है आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब इधर हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव भी आपने इधर से ही लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास वर्ब क्या दी हुई है, इज़, तो आप यहाँ पर इज़ ही लिख लोगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव यूज़ करें तो हम उसके साथ नॉट यूज़ कर लेंगे कॉन्ट्रडिक्शन में, एंड कॉमा एंड देन टी, और आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ही, सो आप यहाँ पर ही लिखोगे। क्लियर है। जो सब्जेक्ट आपके पास स्टेटमेंट में गिवन होगा, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वी यूज़ इन आर क्वेश्चन टैग। आई हैड वार्न्ड यू अगेंस्ट द वायरस अटैक। अब इधर हैड लिखा हुआ है, सो हैड आपका चेंज हो जाएगा डिडेंट में। क्लियर है। हैड डिडेंट आई। यू वॉन्ट डू सच अ थिंग, वॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा विल में, ठीक है, और यू एज इट इज़ आपका रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट हम चेंज नहीं करेंगे। शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्ले, अगेन पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, कांट बन जाएगा एंड सब्जेक्ट आपके पास सेम रहेगा, शी। द बुक हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड येट, नेगेटिव है आपके पास, तो इसका इट्स मीन क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। सो इधर आप यूज़ करोगे हैज़। अब ये बुक है, इधर कोई आपके पास सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इधर ये एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में, सो हियर वी यूज़ इट। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, सो आर आ जाएगा आपके पास, एंड अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, देयर। यू हैव नॉट बीन टू हंजा, हैव यू। यू डिडेंट सी माई मदर एट द पार्टी, नेगेटिव है आपके पास, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा, सो इधर हम यूज़ करेंगे डिड यू। You have been to Dolmen Mall, haven't you? और एट द एंड एज वी नो कि क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन मार्क हमने लाजमी पुट करना है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक डेक्लेरेटिव सेंटेंस एज क्वेश्चंस। अब डेक्लेरेटिव सेंटेंसेज ही हैं, लेकिन जब आप उसको क्वेश्चंस में यूज़ करोगे तो क्या होगा, दिस इज़ कॉमन एज अ स्पोकन फॉर्म बट इट इज़ नॉट यूज इन फॉर्मल और रिटन इंग्लिश। The speaker uses a declarative sentence, subject plus verb, with a rising tone to ask question. It can be either affirmative or negative. स्टूडेंट समटाइम क्या होता है कि आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस को ही किस फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में यूज़ कर रहे होते हो, और वहाँ पर आप एक क्वेश्चन आस्क कर रहे होते, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बट अगर हम फॉर्मल में बात करें, फॉर्मली अगर हम करें, तो हम इसे फॉर्मली अपनी इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं रिटन लैंग्वेज में, ठीक है, ना ही हम स्पोकन फॉर्म में यूज़ करते हैं, नीदर यूज़ इन स्पोकन फॉर्म नॉर इन रिटन इंग्लिश। सो इट इज़ एन इनफॉर्मल वे। यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, अब इट्स अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस बट हेयर वी आस्क क्वेश्चन टू समवन, यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। सो ये क्वेश्चन हो रहा है इन अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इज़ आई कैन ओपन द विंडो। अब इधर जो होता है स्टूडेंट्स, आपकी टोन बता रही होती है, आपकी जो वॉइस टोन है जब आप उसे राइज कर रहे होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, सो यहाँ पर आपकी जो टोन है वो बता रही होती है कि आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो। बट ये एक इनफॉर्मल वे होता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में यूज़ करने का। बट इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्मल, सो फॉर्मली हम इसको स्पोकन में और ना ही रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ एम्पैरेटिव सेंटेंसेस। एम्पैरेटिव सेंटेंस को किस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, सजेशन, एडवाइस और वार्निंग। या तो आप इधर सजेशन दे रहे होगे या एडवाइस, या फिर किसी को वार्न कर रहे होगे, लाइक कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट, इधर आप सजेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो। डोंट मेक अ हैस्टी डिसीजन, एडवाइस यहाँ पर आप दे रहे हो। वॉच आउट द फ्लोर इज़ वेट, एम्पैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आप वार्न कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट, जहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ और काइंडली से अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे होते हो। कमांड और इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो। इम्पैरेटिव सेंटेंस को आप किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पर यही पढ़ें। नंबर 3 था हमारे पास कमांड और इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आप किसी को कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो। डोंट से, डोंट लेट द फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। हीट इट फॉर 2 मिनट्स इन दी माइक्रोवेव, इंस्ट्रक्शंस और कमांड दी जा रही है।
नेक्स्ट इसको आप यूज़ कर सकते हो इन्विटेशन फॉर्म में, हैव सम मोर कॉफ़ी, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आप इन्वाइट करो इन द फॉर्म ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर आपके पास आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट परमिशन और प्रोहिबिशन, जहाँ पर आप परमिट कर रहे हो, किसी को परमिशन दे रहे हो या फिर आप किसी चीज़ से मना कर रहे हो। डोंट टेक फोटोग्राफ्स हियर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। The following are the two common ways in which exclamatory sentences are constructed, using what with a noun and using how with an adjective or an adverb. इट्स मीन कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को 2 वेज़ में यूज़ कर सकते हो, या तो आप व्हाट के साथ कोई नाउन यूज़ करते हो या फिर आप हाउ के साथ कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज़ कर रहे होते हो। आप इधर हम व्हाट का देख लेते हैं, व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। सो इधर आप व्हाट के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नाउन। ठीक है, अब यहाँ वाउल था हमारे पास, सो हियर वी यूज़ एन, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो इधर हमने ए यूज़ किया है, और एट द एंड हमने क्या यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आपके पास आ जाता है हाउ, कि आप हाउ जो है वो या तो एडजेक्टिव के साथ या फिर एडवर्ब के साथ यूज़ कर रहे हो। हाउ एब्सर्ड ऑल दिस साउंड्स, हाउ रूडली शी स्पीक्स, हाउ केयरलेस यू आर। तो यहाँ आपको एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव ही शो हो रहा होगा। उसके बाद एक्सरसाइज सी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्सरसाइज डी। ए और बी आप अपनी करोगे बुक में, और एक्सरसाइज डी हम करेंगे एक्सरसाइज नोटबुक में। सो लेट्स हैव अ लुक। एक्सरसाइज डी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। इट्स मीन कि आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमने उसे चेंज करना है। नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ, देन यू विल गेट पिक्चर्स। शी इज़ अ पुअर स्पीकर, ये एक आपके पास सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पर आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे आप कह सकते हो, जिसको आपने चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। सो डेफिनेटली एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपने पुट करना होगा। सो अब यहाँ पर आप करोगे, यहाँ आपके पास क्या है, नाउन है, सो इसलिए हमने इसको यूज़ किया व्हाट से। व्हाट अ पुअर स्पीकर शी इज़, और एट द एंड हमने क्या यूज़ कर दिया है इधर, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको आप डेक्लेरेटिव में करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। एट द एंड हमने क्या यूज़ किया है, फुल स्टॉप। सो इसी तरीके से आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है सेंटेंस में ब्रैकेट में, आपके उसके अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंस को चेंज करना है। ये 10 सेंटेंसेज हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे। बट स्टूडेंट्स चैप्टर जब आप अपना स्टार्ट करेंगे तो ये जो आपके पास डेफिनेशंस हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में कॉपी कर लोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दिस आपके पास ये जो एफर्मेशन एंड नेगेशन का आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ इट्स मीन कि आपने एफर्मेशन नेगेशन से लेकर आपके पास जो बने हुए हैं नेगेटिव, इम्पेरेटिव, लास्ट वन बैरफुट तक, यहाँ तक आप इसे कॉपी कर लोगे। ये कॉलम भी और ये कॉलम भी अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में फेयर कर लोगे, और एक्सरसाइज ए और बी आप अपनी बुक में ही करोगे। डी हम एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे, सी हम नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल, थैंक यू।